Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11, Organic Chemistry. Today we will learn sources of organic compounds, in which we study petroleum, natural gas, plants, and synthesizers in laboratory. Then we will move on to study uses of organic compound as used in food, as in clothes, as in houses, fuel, medicine, and as a raw material. Clear? Now start our lecture by discussing petroleum. Petroleum is a dark brownish or greenish black colored viscous liquid. Viscous का मतलब होता है थोड़ा सा thick liquid है. It is a complex mixture of several solid, liquid or gas hydrocarbons in water mixed with salt and earthy particles. ये आपके पास पेट्रोलियम की डेफिनेशन और उसकी कंपोजिशन बता दी गई है. Clear? Petroleum is a main source of organic compound. By fractal distillation, we can find many organic compounds. So, it is a main source of many organic compounds. It consists of several compounds, mainly hydrocarbons. Major components जिसके कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन से बेस करते हैं. These compounds are separated by fractional distillation. Separation of fraction or component depending upon boiling point range. Previous lecture में हमने इसको साथ साथ डिस्कस किया. So what is fractional distillation? Separation on the basis of their boiling point range. ठीक है? Each fraction is not a single compound, rather each of it consists of a different organic compound. अब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनने वाले कंपाउंड नेसेसरी नहीं है कि वो एक एलिमेंट पे बेस करें या वो एक कंपाउंड हो, और डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है. क्लियर? सोर्स इज नेचुरल गैस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन. आपके पास इसकी कंपोनेंसी में जो हाइड्रोकार्बन आते हैं वो मॉलिक्यूलर मासेस लो रखते हैं. क्लियर? And its main component, इसका जो main component है वो क्या है? मीथेन. It is about 85% in natural gas. दूसरी गैसेस भी होती हैं जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बट its origin, जो इसका origin है वो कोल और पेट्रोलियम की तरह सिमिलर है. ठीक है? नेचुरल गैस का. क्लियर? नेचुरल गैस इज यूज एज फ्यूल इन होम एज वेल एज इन इंडस्ट्री. आपके पास नेचुरल गैस घर में भी एज अ फ्यूल यूज होती है और इंडस्ट्रीज में तो इसका यूजेज है ही है. It is used as a fuel in automobiles as compressed natural gas, CNG. It is a very common name in our society. Compressed natural gas. Natural gas को compress करके आपके automobiles, आपके vehicles में use किया जाता है for transportation sector. Clear? Natural gas is also used to make carbon black and fertilizer. Carbon black आजकल purifying agents में बहुत ज़्यादा use हो रहा है, तो उसके लिए natural gas का use है. इसके अलावा फर्टिलाइजर जो कि फील्ड वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं उसमें भी नेचुरल गैस का यूज आता है. क्लियर? हियर वी हैव अ डायग्राम इन व्हिच वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड शोइंग द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेट्स हैव अ लुक. इट इज अ अर्थ क्रस्ट. ठीक है? उसके बाद बेटा आपके पास शेल की लेयर आ गई, फिर एम्पिरिकल रॉक्स आ गए. देन वी हैव अ रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस. Then we have a resource of petroleum. Okay, just above water table there is a resource layer of petroleum. Then we have an impervious rock. Clear? Now we are going to discuss plants. Living plants synthesize macromolecules. As we know that plants synthesize carbohydrates, proteins, oils and vitamins. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट. The basic unit of all types of carbohydrate is glucose, which is synthesized by plants through photosynthesis. Clear? Glucose is further polymerized to form sucrose, starch and cellulose. ठीक है? इन सब की बहुत सारी importance और uses हैं in our daily life. Clear? Now we are going to discuss protein. प्रोटीन आर फाउंड इन पल्सेस एंड वेन्स. आपके पास जो आपकी दालें होती हैं उनके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं.
protein are prepared by fixation of nitrogen by bacteria found in the root of plant. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रेडी हो जाता है, जो आपके पास रूट नोड्यूल्स में आपके पास बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इस प्रोसेस के जरिए आपके पास उनके रूट्स में क्या फॉर्म हो जाते हैं, आपके पास उनके रूट में बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है वो डेपोजिशन हो जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. क्लियर? Now we are going to discuss oils. Oils are found in seeds of plants such as sunflower, rapeseed, palm, coconut and groundnut. आपके पास इन सब प्लांट्स के सीड्स के अंदर जो है ना वो क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं. कभी आपने सीसम सीड को पिंच करके देखा हो अगर, तो उसके भी टिप से ऑयल निकलता है. इसी तरह आपके पास इन सब के सीड्स के अंदर ऑयल मौजूद होता है. क्लियर? Now we are going to discuss vitamin. Vitamin are found in apple and citrus fruit. आपके पास एप्पल citrus fruit में vitamins की huge amount होती है. Besides these major food items, plants also give us gums, rubber, medicines. इन सब मेजर के अलावा आपके पास प्लांट और भी बहुत से कंपोनेंट्स देते हैं, जैसे गम्स है, रबर है, मेडिसिन है. ये गम जो है बेटा आपके पास प्रिजर्विंग मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है. रबर आपको अच्छे से पता है, बहुत सारी आपकी कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके साथ यूजेज है आपका. मेडिसिन आपको अच्छे से पता है, हर डिजीज का क्योर की मेडिसिन मौजूद है आपके पास. तो इसी तरह प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर डेली लाइफ एंड प्लांट्स also synthesize much more organic compounds. Now we are going to discuss synthesize in laboratories. About 200 years ago ये कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से सिंथेसाइज कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइटल फर्स्ट थ्योरी. चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये सारा डिस्कस किया. फिर जब हमारे पास रूलर साइंटिस्ट ने यूरिया की फॉर्मेशन की इन लेबोरेटरी, तो इस चीज में चेंज आया. सो अब तक ये माना जाता है और अब तक हम लोग ऑलमोस्ट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बना चुके हैं. दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. उनकी रेंजेस आपके पास सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आती हैं. दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स, मेडिसिन. आपके पास ड्रग्स मेडिसिन में फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, खुशबू, टेस्ट, प्लास्टिक, पेंट, सिंथेटिक फाइबर, रबर, कॉस्मेटिक्स, जितना भी आप मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते हैं, टॉयलेटरीज, डिटर्जेंट्स, जितने भी क्लींजिंग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो आपके माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, इन सब के अंदर आपके पास ये मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हम अपना टॉपिक चेंज करके नए टॉपिक पे जा रहे हैं. यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. उनकी हमने रिसोर्सेज तो पढ़ी, अब हम देखने लगे कि ये हमारी कॉमन लेसन कहाँ कहाँ यूज होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज नो डाउट thousands of organic compounds are synthesized naturally by animals and plants, but millions of organic compounds being prepared in laboratory. आपको अच्छे से पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट और एनिमल के सिंथेसाइजेशन के अलावा लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जा चुके हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट में किए जा चुके हैं. These compounds are part of everything from food we eat and the various items we use in daily life for fulfill our needs. हमारी खाने पीने की चीजों से लेकर के जितनी भी आपकी यूटिलाइजेशन में आने वाली चीजें हैं, उन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन मौजूद है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी यूज इन फूड. दैट इज द फूड वी ईट डेली such as milk, eggs, meat, vegetables contain carbohydrate, protein, fats, vitamins. All of these are organic stuff. Clear? Another use is used as clothing. All types of clothes we wear
वी यूज एज अ बेडशीट एक्सेट्रा, जितने भी कपड़े हम पहनते हैं यूटिलाइज करते हैं अपने घरों के अंदर बेडशीट के ऊपर, और उसके अलावा जितने भी कवरेज थिंग्स आते हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं, नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर बेसिकली आपके पास कॉटन, सिल्क और वूल होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जो कि सिंथेसाइज किए गए हैं इंडस्ट्रीज और लैब्स में, वो भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एज एन वी हैव नायलॉन, और उसके बाद हमारे पास टेफ्लॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। और ये सारे के सारे किसकी कंपोजिशन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Another usage is in household. Our wood is a cellulose, naturally synthesized organic compound. Wood हमारे घरों में जो यूज होती हैं, ये सब की सब natural organic compounds हैं। On the other hand, it is used for making house and furnitures of all kinds. हमारे घरों में फर्नीचर्स बनाने में वुड का बहुत अहम रोल है। क्लियर? यूज एज अ फ्यूल, the fuel we use for automobiles and domestic purposes are coal, petroleum, natural gas. These are called fossil fuels. All are organic compounds. जितनी भी चीजें ऑटोमोबाइल्स में, डोमेस्टिक यूज, घरों के इस्तेमाल में आप लोग लेके आते हैं, वो सारे आपके रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है? और फॉसिल फ्यूल मीन्स कि आप फॉसिल क्या होती है, जमीन के अंदर से जो चीजें आपके पास निकलती हैं, दीज आर फॉसिल। सो दैट्स व्हाई दीज आर कंपोनेंट्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ही बेस कर रहे होते हैं। Now we are going to discuss using medicines. A large number of organic compounds naturally synthesized by plants are used as medicine by us. Organic compound based medicines हम लोग बहुत ज़्यादा use करते हैं। Most of the life-saving medicines and drugs such as antibiotics. Antibiotics वो जो आपके पास बैक्टीरिया वगैरह की हैबिटेट को, बैक्टीरिया वगैरह के सर्वाइवल को कट ऑफ कर देते हैं। Inhibit और kill the microbes. स्पेशली जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनसे इंफेक्शन नहीं होने देते, विच कॉज इंफेक्शन। जितने भी इंफेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं आपकी बॉडी में, बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो हैव बेनिफिशियल माइक्रोब्स, ये उनको किल नहीं करती, स्पेसिफिकली आपकी बॉडी के उन जर्म्स को किल करती है जो इंफेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है? ठीक है। और ये सारे के सारे सिंथेसाइज किए गए हैं कहाँ, लेबोरेटरीज में। Another use is used as a raw material. Organic compounds are used to prepare variety of materials such as rubber, paper, ink, drugs, dyes. ये सब चीजें हमारी कॉमन लाइफ में यूज होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सब के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मीन बेसिक मटेरियल, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। क्लियर? Now we are going to discuss our test yourself number 11.3. Here we have defined petroleum. आप पेट्रोलियम की डेफिनेशन लिखेंगे। What type of compound are synthesized by plant? किस तरह के कंपाउंड प्लांट सिंथेसाइज करता है, हम डिस्कस करके आए, आप वहां से लिखेंगे। What is the basic unit of carbohydrate and how it is synthesized? प्लांट के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। CNG stands for compressed natural gas. आप इसको लिखेंगे कंप्लीट एक सेंटेंस की फॉर्म में। Our existence owes to organic compounds. कमेंट, उन्होंने कहा कि हमारे एग्जिस्टेंस बेस करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक यूज देखेंगे, एज वी यूज इट इज इन फूड, इन मेडिसिन, इन क्लोथिंग एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एमसीक्यूज। द फर्स्ट एमसीक्यू इज पल्सेस एंड वेन आर प्रेजेंट और सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको अच्छे से पता है बोथ ऑफ दीज आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सेकेंड एमसीक्यूज, which one of the following is a synthetic fiber? अभी हम डिस्कस करके आए हैं कॉटन, वूल, सिल्क आर नेचुरल फाइबर एंड नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, सो सी इज अ बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। इसी तरह के एमसीक्यूज आप लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग फुल मार्क्स इन एमसीक्यूज। Now let's have a look on short question. We have short question, what is natural gas? Here we have an answer. इस तरह से आप इसके इन पॉइंट्स के साथ आंसर देंगे। क्लियर? Another short question is write any two uses of organic compound. अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप कोई से भी टू यूजेस लिख सकते हैं, लेकिन if they mention some specific use as use in food, use as cloth, use as furniture, use as raw material,
तो फिर आप वो स्पेसिफिक वहां पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा कलेक्टिवली यूजेस आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। कलेक्टिवली पेट्रोलियम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट आ सकता है, कोई से दो पे नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसी तरह आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। क्लियर?